Hello everyone. In today's class, we are going to discuss central problems of an economy. In the previous videos, we have discussed what is an economy, what is economics, the difference between the two, and different types of economies. Today, we will discuss the central problems faced by an economy. These are also known as the problems of allocation. So, why there is a problem of allocation in the first place? Because of scarcity of resources. Why are the resources scarce? Because they are limited in nature. The resources are limited. The resources have alternative uses, and the human wants are unlimited. And this imbalance between the limited resources having alternative uses and the unlimited human wants creates the problem of choice. And due to this problem of choice, we have to choose how we want to allocate our limited resources in the best possible manner so that we get the maximum output. So let's look at these problems one by one. Our first problem is problem of what to produce. In this, we decide what type of good we want to produce and in what quantity we want to produce this good. Okay, so what are different kinds of goods? The first is consumer good or producer good. We have to decide between the two. What is consumer good? Consumer good is a good which is ready for final consumption. A good that is used by you and me, that is ready to use. For example, a phone, a car, shirt, mobile, etc. All these are consumer goods. Okay. And what is producer good then? A producer good or a capital good, it is also known as capital good, uh, is the good which is used in further production of other goods. You cannot use it directly, you cannot consume it directly. For example, the building, machinery, tools, equipments, all these are part of producer goods or capital goods. They are further used in consumption. They are not ready to use by people like you and me, the final consumers. Okay. And consumer good is ready to use by you and me. So we can either decide to produce consumer good और अ प्रोड्यूसर गुड बिकॉज प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करने की भी तो फैक्ट्रीज होती है ना ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी जो बड़ी मशीन्स बना रही होंगी जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं और देयर इज a small firm or a big firm producing our normal consumer goods like food, okay, and food, mobile, and etc. Then there can be other kinds of goods also, like a public good or a private good. What is a public good? Public good are non-excludable goods. What is non-excludable goods? It means that you cannot exclude other people from using it. जैसे कि जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जो हमारी सरकार ने दी हुई हमें चीजें हैं वो आर पार्ट ऑफ पब्लिक गुड्स जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं नेशनल डिफेंस हैं एंड पब्लिक पार्क्स हैं all these are available to everyone. You cannot exclude anyone from using it. It is part of every it is available to every Indian national. Then these goods are non-rivalrous. What is non-rivalrous means कि अगर कोई एक person उस good को use करता है तो it doesn't reduces द यूज फॉर अदर पर्सन. जैसे अगर मैं स्ट्रीट लाइट का यूज करती हूँ, मैं उस रोड से जा रही हूँ जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हूँ, तो इससे ऐसा नहीं है ना कि वो स्ट्रीट लाइट खत्म हो जाएगी, कोई और पर्सन उसको यूज नहीं कर पाएगा या फिर उसकी क्वांटिटी में कोई कमी आ जाएगी. नहीं, इट डजंट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स फॉर अदर पर्सन टू यूज इट, नेक्स्ट पर्सन टू यूज इट. And then what is private good? Private good is just opposite of public good. That is, it is excludable in nature. For example, a sandwich, car, shirt, phone, your personal belongings, or all these kind of resources, these kinds of goods, which can be excluded. कैसे exclude करोगे आप किसी से? Because you are charging money from people to buy these goods. ठीक है. किसी को भी फोन फ्री में, ये सब चीजें फ्री में नहीं मिलती हैं, राइट? शर्ट, पैंट, sandwich, car, etc. All these are not free to anyone. So you can exclude other person by purchasing and non-purchasing it. And these goods are rivalrous in nature. क्योंकि एक
अगर मैं एक चीज को खरीद लेती हूँ तो इट इज लेस अवेलेबल फॉर अदर पर्सन टू यूज. व्हाई इज इट सो? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. और हम ऐसे छोटे लेवल पे सोचे तो द कंपनी दैट इज प्रोड्यूसिंग इट इन लिमिटेड नंबर्स, राइट? तो वो बाकी लोगों के लिए कम हो जाएगा. सपोज कंपनी ने 1000 शर्ट्स बनाई, तो और मैंने उसमें से 100 खरीद ली, तो अब बची 900 ही ना, राइट? अभी 1000 तो है नहीं, और हम ये मानते हैं कि रिसोर्सेज इकोनॉमी में लिमिटेड है. अगर कंपनी और ज्यादा शर्ट्स बनाती है तो वो रिसोर्सेज कहीं और से इधर आएंगी, राइट? बाय द टाइम वी आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट की इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड एवरीथिंग, राइट? ये हम लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो हमें अब समझ में आ गया अलग अलग तरीके के गुड्स हैं एंड वी हैव टू चूज कि हमें किस तरीके का गुड प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी के अंदर. ओके, हमें इसके साथ में एक और चीज भी चूज करनी होती है कि वेदर वी वांट टू, इन हाउ मच क्वांटिटी वी वांट टू प्रोड्यूस दिस गुड. हमें कंज्यूम, ऑफ कोर्स इकोनॉमी को दोनों गुड्स चाहिए, कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड, दोनों चाहिए. अब मैं ये भी तो देखूंगी मैं कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूसर गुड चाहिए हमें. ठीक है? तो ऑल दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी. व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कि हमें क्या सोच के ये वाला डिसीजन लेना चाहिए? इट इज टू वी हैव टू allocate resources in such a manner which gives maximum aggregate satisfaction to the people. Aggregate means sum total. Okay, तो जितने ज्यादा लोगों को हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अलोकेट करने चाहिए in production of different kinds of goods. Okay, I hope it is clear. Then the second problem is प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड बनाना था या प्रोड्यूसर गुड बनाना था या पब्लिक गुड बनाना था या प्राइवेट गुड बनाना था. आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव टू चूज कि हमें उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे. कैसे प्रोड्यूस मीन्स what technology we are going to use to produce this good. What are the different kinds of technologies that we have? Either we are going to use labor intensive technology or a capital intensive technology. What is labor intensive technology means? It means using more of human labor and less of machines. ओके, लेस ऑफ कैपिटल. कैपिटल हमने कल देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है. मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ capital. So more, when we use more of labor and less of machine, then it is known as a capital intensive technique. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक छोटी सी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर सपोज वो हैंडीक्राफ्ट वाली कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्री है एंड वी आर प्रोड्यूसिंग कॉटन क्लॉथ्स. ठीक है? तो उसके अंदर अगर हम उस छोटे लेवल पे हम उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड वी आर एम्प्लॉइंग मोर लेबर. ठीक है? अगर मैं हैंडीक्राफ्ट के बेसिस पर इसको रखूंगी तो आई विल बी अप्लाइंग मोर एम्प्लॉइंग मोर लेबर रादर देन मशीन्स. ठीक है? तो इट विल बी अ लेबर इंटेंसिव, आई विल बी यूजिंग अ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. एंड if I am working in a big factory, if I have set up a big factory जहाँ पर बहुत सारे सेम तरीके के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे एक सी ही शर्ट्स जो हम मशीन मेड शर्ट्स यूज करते हैं उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो then I will be using a capital intensive technology. What does it mean? It means that I am using more of capital, that is more of machines and less of human labor. मैं उसका और भी, मेरी कंपनी को मैं और भी ज्यादा ऑटोमेट ऑटोमाइजेशन कर रही हूँ एंड आई एम एम्प्लॉइंग लेस लेबर कंपेयर टू इट. अब मैं ये कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है? इट इज गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल दैट वी हैव टू कंबाइन factors of production in such manner so that maximum output is produced at the minimum cost using least possible of scarce resources. क्यों? हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हम किस मिनिमम कॉस्ट पे रखना चाहेंगे. व्हाई वी वांट टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट? बिकॉज वी वांट टू मेक मोर प्रॉफिट.
प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए हमें कॉस्ट हमारी कम करनी होगी, राइट? ये कॉन्सेप्ट हम और भी अच्छा प्रोडक्शन के अंदर सीखेंगे कि कैसे कॉस्ट कम करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। बट फिर भी ये जनरली सबको पता होता है कि प्रॉफिट के अंदर हमारी कॉस्ट अगर ज्यादा होगी, मैं कोई शर्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके अंदर मेरे इनपुट के कॉस्ट 10 रुपए है और मेरी फाइनल प्राइस 12 रुपए है, तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 2 रुपए का है, राइट? और अगर मैं इस कॉस्ट को सम हाउ कम करके 9 कर लेती हूँ और मेरी प्राइस सेम ही रहे 12 रुपए, तो मुझे 1 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आई विल ऑलवेज बी ट्राइंग टू मिनिमाइज माई कॉस्ट। तो मेरी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी विल डिपेंड ऑन कि मेरे पास क्या चीप है। इधर लेबर इज चीपर टू मी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे इंडिया और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, यहाँ पर लेबर इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। वी हैव चीपर लेबर बिकॉज वी हैव ह्यूमन कैपिटल इन अबंडेंस। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों टाइप ऑफ लेबर हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है। तो वी विल बी यूजिंग मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और कंट्री और कैपिटल इंटेंसिव कौन यूज करेगा? फॉर एग्जाम्पल, कंट्री रिच कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके एंड फ्रांस, जो यूरोपियन नेशंस हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, देयर फॉर देम कैपिटल इज कंपैरेटिवली चीपर। उनके लेबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ड्यू टू द लेबर लॉस एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर टू देम। तो वो मशीन्स में इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहेंगे बिकॉज इट विल बी रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल कॉस्ट कंपेयर टू द लेबर कॉस्ट। ओके, तो सो दिस डिपेंड्स ऑन कि आपकी कॉस्ट किससे मिनिमाइज हो रही है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे। ओके, then what is our next problem? Our third problem is for whom to produce. For whom to produce is we have to decide who is our ultimate consumer. क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रिच के लिए कर रहे हैं या पुअर लोगों के लिए कर रहे हैं? अब मुझे ये क्यों डिसीजन लेना है? बिकॉज अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्शन होगा वो किसी न किसी के कंज्यूम करने के लिए ही हो रहा है। और रिच और पुअर कैसे? कि लोगों के पेइंग कैपेसिटी ही तो बताएगी कि क्या वो गुड हमारा खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो आई हैव टू मेक दिस डिसीजन कि वेदर आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर रिच और पुअर। इन दिस वी आर कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों? बिकॉज इनकम डिसाइड्स योर पेइंग कैपेसिटी एंड योर पेइंग कैपेसिटी डिसाइड्स वेदर यू आर गोइंग टू एबल टू अफोर्ड द गुड दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड और नॉट। Okay, so this problem can be categorized under two heads. Number one, either the distribution of income can be personal distribution or it can be a functional distribution. Personal distribution means ki how the income is distributed among different groups of people. Okay, like we can group them as rich or poor. We can group them as like urban crowd or rural consumers. Okay, so their tastes are different and their requirements are different. Okay, so accordingly we will be deciding for whom we are producing, or we can distribute according to the functions, or that is factors of production, कि कैसे factors of production किस किस factors of production के लिए हम क्या क्या production कर रहे हैं, कौन सा गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि क्या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, यू विल गेट इट बेटर व्हेन वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ national income. Okay, national income is part of macroeconomics. Even it is the first topic of macroeconomics, so you will get better hold of this topic there. हम मोटे मोटे तौर पे हमें बस यही समझना है, for whom to produce में we are deciding who our ultimate consumer is, ultimate group of consumer is. Here we, our guiding principle is we have to ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible extent, because the resources are limited. हमें सभी की needs fulfill करनी है, needs satisfy करनी है, और हमें ये decide करना है कि हमारे जो goods produce हो रहे हैं वो maximum लोगों की maximum needs को fulfill कर पा रहा है। Okay, so this is it about our three central problems of the economy. I hope these are clear. Then let's do a quick exercise कि अभी हमने इससे लास्ट क्लास में we read about different types of economies. We read market economy, also known as capitalistic economy. We read about command economy, also known as socialistic economy. We read about mixed economy. Now let's see how these economies are going to solve the central problems of what to produce, how to produce, and for whom to produce. Let's see. मार्केट इकोनॉमी कैसे इस चीज को सॉल्व करेगी?
फॉर मार्केट इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमें पता है कि इस मार्केट इकोनॉमी में और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सारे के सारे डिसीजन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ले रहे थे। वो प्राइस डिटरमाइन करेंगे और उसके बेसिस पर पता चल जाएगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। एंड यहाँ पे जो ड्राइविंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। ओके, कि प्रॉफिट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि क्या गुड ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कौन सा गुड प्रोड्यूस नहीं होगा। जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा इट विल बी प्रोड्यूस्ड मोर, जिससे प्रॉफिट कम होगा उसे कम प्रोडक्शन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स हैं। ओके, देन हाउ टू प्रोड्यूस का क्या वो क्या करेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होगा? हाउ टू प्रोड्यूस विल बी डिसाइडेड ऑन विच विल, जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल था कि जिसमें मिनिमम कॉस्ट होगी। Okay, we will be using that technology, labor intensive or capital intensive. We will be using that technology which will be costing us the least and which will be producing the most output. ठीक है, तो ये जनरली ये किसकी तरफ टिल्टेड होते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरफ। क्यों? क्यों की तरफ? बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम लेस कंपेयर टू द लेबर। और ये वैसे भी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में दे विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स LIT एंड इन एडवांस कंट्रीज दे विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स CIT। ओके, देन फॉर होम टू प्रोड्यूस ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस भी डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट की पेइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर रिच और दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर पुअर। ओके, तो इससे ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स हमारी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। देन इन अ प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर और प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल दिस आर सेम। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन लेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सारे डिसीजन यहाँ पे गवर्नमेंट ही ले रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे लेंगी? कैपिटलिस्ट तो प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पे लेती हैं। गवर्नमेंट कौन किस बेसिस पे लेंगी? दे विल बी डिसाइडिंग ऑन सोशल वेलफेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेलफेयर वॉज द मेन मोटिव, सोशल वेलफेयर एंड नेशनल प्रायोरिटीज। देन हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्नोलॉजी को फोकस किया जाएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मिनिमम कॉस्ट तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किससे मिनिमम कॉस्ट होगी। सो मेजरली यहाँ पर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होता है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देन फॉर होम टू प्रोड्यूस का जो डिसीजन है ये भी कि कौन डिसाइड करेगा? द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इक्वालिटी गोल्स। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इक्वालिटी गोल्स, क्योंकि गवर्नमेंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। यहाँ पे तो रिच पुअर के अकॉर्डिंग हो सकता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए दे विल बी फोकसिंग ऑन इक्वल शेयरिंग ऑफ आउटपुट। देन हम आते हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में, जिसका एग्जाम्पल हमें पता है इंडिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज हैं। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर? व्हाट टू प्रोड्यूस विल बी डिसाइडेड बाय बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर जिस चीज को हैंडल कर रहा है वहां पे प्रॉफिट मोटिव होगा, एंड जिस चीज को गवर्नमेंट हैंडल कर रही है वहां पे वेलफेयर का मोटिव होगा। ओके, सो गवर्नमेंट विल बी प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी प्रोड्यूसिंग द गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोटिव। देन हाउ टू प्रोड्यूस का कौन सॉल्व करेगा? हाउ टू प्रोड्यूस विल बी डिसाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड्स। प्राइवेट सेक्टर तो वही अपना मिनिमम कॉस्ट पे फोकस करेगा, एंड गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी बेसिस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो अपने लेबर इंटेंसिव मेथड पे ज्यादा फोकस कौन करेगा? गवर्नमेंट। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस की सोल्यूशन कौन देगा? मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलके यहाँ पर सारे के सारे सोल्यूशन देंगे। जो प्राइवेट होगा वो रिच और पुअर के अकॉर्डिंग उनको जो गुड प्रोड्यूस करना है वो वैसे प्रोड्यूस करेंगे, बट गवर्नमेंट उसी चीज को जो इनइक्वालिटी प्राइवेट सेक्टर के कारण क्रिएट होगी उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटिंग यूजिंग द टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, ये हम अच्छे से टैक्स और सब्सिडी से कैसे इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करती है इनइक्वालिटी, वी विल रीड दिस इन लेटर चैप्टर्स ऑफ पोवर्टी एंड पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, so I hope the concept of central problems of economy is clear to everyone, and we have also seen how different types of economies solve these
handle these central problems. Then our most important and most awaited concept, that is opportunity cost. It is the cost of next best alternative foregone. What does this mean? Let's take an example to understand this. Okay. Um, okay. Suppose you get two job offers from two IT firms. I've told you firm is a company. Firm A and firm B. Firm A आपको ऑफर कर रही है 30 lakhs per annum की salary, and firm B is offering you 20 lakhs per annum की salary. Being a rational person who wants to maximize their benefit, you will be choosing firm A because ये आपको ज़्यादा salary offer कर रही है. But by choosing firm A, you are losing your second option. So what is the opportunity cost of choosing to work with firm A? Is the cost of firm वर्किंग विथ फर्म बी. दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी इस केस में क्या होगी? अगर आप ए को चूज करते हो, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गोइंग टू बी 20 lakhs पर एनम. जो ये कहाँ से आया अमाउंट? इट इज द जॉब ऑफर दैट वाज बीइंग गिवन बाय फर्म बी. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज यू आर अ फार्मर. आपके पास 10 acres ऑफ लैंड है. ठीक है, सॉरी ए से आ रही. यू कैन ईदर प्रोड्यूस wheat on it और यू कैन प्रोड्यूस बार्ली ऑन इट. ठीक है, अगर आप वीट प्रोड्यूस करते हो तो ऑन एन एवरेज यू विल रिसीव 2500 रुपीज पर क्विंटल. क्विंटल इज 100 kg. और अगर आप बार्ली प्रोड्यूस करते हो तो यू विल रिसीव 2100 रुपीज पर क्विंटल. बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर, बीइंग अ रैशनल फार्मर जिसको अपने प्रॉफिट्स, अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है, यू विल बी चूजिंग टू प्रोड्यूस वीट क्योंकि वो आपको ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है. सो आपकी वीट प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बार्ली. सो ये हियर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गोइंग टू बी 2100 रुपीज पर 100 kg और पर क्विंटल. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. और एक और एग्जाम्पल हम रियल लाइफ का लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या यस. सो एक और एग्जाम्पल. लेट्स टेक एन. अभी यूएस और ईरान का वॉर चल रहा था. अब तो वो कंप्लीट हो गया है. सो व्हेन दीज कंट्रीज वर fighting this war, what was the opportunity cost of this war? The opportunity cost of this war was peace. The peace that people were letting go of when these countries were fighting war. The opportunity cost of any war in world is the peace that people are letting go of. I hope it is clear. और एक लास्ट एग्जाम्पल छोटू सा, उससे हम समझते हैं. सपोज आपके पास में 40,000 रुपीज है. ठीक है, आपके पास 40,000 रुपीज है. यू कैन ईदर स्पेंड इट टू बाय अ लैपटॉप और यू कैन स्पेंड इट टू बाय एन एलईडी टीवी. ठीक है, अब आपने दोनों की कॉस्ट सेम है. अब आप 40,000 से या तो ये लैपटॉप खरीद सकते हो या तो आप ये एलईडी टीवी खरीद सकते हो. यू डिसाइडेड टू बाय दिस लैपटॉप, but you let go of your LED TV requirements. So, what is the opportunity cost of buying this laptop? The opportunity cost of buying this laptop was the cost of LED TV that you did not buy. I hope this is clear to everyone. And some of you, and yes, then some of you might ask, ma'am, कि हम ये आई विल ऑलवेज बी चूजिंग द बेटर ऑप्शन. लाइक ए वाले एग्जाम्पल के अंदर, फॉर आईटी फर्म वाले एग्जाम्पल में मैं हमेशा यही ए फर्म को ही चूज करूंगी जो मुझे बेटर बेनिफिट्स दे रहा है, जो मुझे ज्यादा सैलरी दे रहा है. आई विल नेवर चूज द फर्म बी. इन फार्मर एग्जाम्पल आई विल नेवर चूज टू प्रोड्यूस बार्ली. सो वाई एट ऑल डिस्कस अबाउट दिस सेकेंड थिंग, कि हम इस सेकेंड वाले को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन रियलिटी द सिचुएशंस आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फर्म ए एक स्टार्टअप कंपनी है, एक न्यू स्टार्टअप फर्म है, एंड फर्म बी इज अ बिग कंपनी लाइक अ मैंगो कंपनी, जैसे मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स. अगर एक बड़ी कंपनी है
तो आपकी चॉइसेस यहाँ पर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, योर डिसीजन मेकिंग विल बिकम अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स हियर। क्योंकि फर्म ए आपको वैसे तो ज़्यादा सैलरी दे रही है, बट बीइंग अ स्टार्टअप फर्म देयर इज अ चांस कि वो आपको उतनी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी ना फील करवा पाए। Okay, it won't be able to give you that much of social prestige, or it won't be able to give you that much of social security benefit. It is just a like situation. Okay, so this is not reality. Some firms might give you, बट ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपको ये सब बेनिफिट ना दे पाए। एंड फर्म बी, जो एक मेटा कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, इट इज गिविंग यू like it is offering you less salary, but it is also giving you social prestige. There are you have more developmental or personal growth, career growth chances in this big firm. यहाँ पे आपको सोशल बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हियर टेल्स यू कि आप इन दोनों में से एक कौन सा डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन को लेने के कारण आप क्या एक सेकंड चॉइस मिस कर रहे हैं। Okay, it helps you make a rational choice, an informed or a better choice. ठीक है। एंड ये तो हमारी थी पर्सनल बात। इकोनॉमिक्स में हम इतने ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर देम टू बी कांस्टेंट। Okay, so what is the economic reason of understanding this concept of opportunity cost then? What is the rationale behind it? The rationale is the problem of choice. We know the resources are limited, resources have alternative uses, and the human wants are unlimited. That's why we have problem of choice, and because we have to choose, we have to make a rational choice. हमें एक अच्छी choice make करनी है। Opportunity cost helps us to make better choices. वो आपको बताता है कि आपके दोनों options को weigh करने में it helps you कि किससे आपको क्या loss होगा, किससे आपको क्या benefit होगा। Okay, ये इतना important concept है economics के अंदर, that it is known as economic cost also. Sometimes some economists even prefer to call it economic cost. I hope this is clear. These were the two topics that we were supposed to discuss today. And like if you like this video, please do press the like button, share the video with your friends, and I'll see you in the next video. Thank you.